Hello everyone. 8th standard, we are working with our social studies lesson number 2 of history and third video related to lesson number 2, in which we will discuss today one topic that is Battle of Plassey. बैटल ऑफ प्लासी एक्चुअली वो बैटल है जिससे जिसके बाद ब्रिटिशर्स जो है वो और कॉन्फिडेंट हो गए थे एंड दे फाइनली स्टार्टेड स्प्रेडिंग इन इंडिया. ओके, बैटल ऑफ प्लासी एक नवाब ऑफ बंगाल दैट इज सिराजुद्दौला के साथ हुआ था. वो भी ब्रिटिशर्स का, और ब्रिटिशर्स उसमें जीत गए थे एंड अपनी जीत के बाद फाइनली दे स्टार्टेड कैप्चरिंग different territories of India. Okay, in this we are on page number 12, the Battle of Plassey. When Alivardi Khan died in 1756, Sirajuddaulah became the Nawab of Bengal. The company was worried about his power and into a puppet ruler who would willingly give trade concessions and other privileges. जब अलीवर्दी खान एक्सपायर हुए 1756 में, अलीवर्दी खान वी कैन टेल नवाब ऑफ बंगाल, जो थोड़ा कंसेशन में भी दे रहे थे ब्रिटिशर्स को. वो ब्रिटिशर्स के साथ उनका कोई बैटल नहीं था, एज हमने अबव पैराग्राफ में पढ़ा है. औरंगज़ेब की परमिशन लेने के बाद उन्होंने बंगाल में अपना बिजनेस सेटअप करना शुरू कर दिया था एंड अलॉन्ग विद दैट धीरे धीरे दे स्टार्टेड एक्सपेंडिंग द बिजनेस. और जो राजास थे, जो नवाब थे, अलीवर्दी खान थे, ना चाहते हुए भी उनको ये बात माननी पड़ रही थी और ब्रिटिशर्स को कुछ कंसेशन दे रहे थे. So they thought कि Sirajuddaulah will also provide some concession to us. So let us see whether Sirajuddaulah Khan will be benefit for us or no. Britishers thought this. Okay, so it tried though without success to help one of the Sirajuddaullah's rival became the Nawab. And infuriated, Sirajuddaulah asked the company to stop meddling in the political affairs of his dominion, stop fortification and pay the revenues. So Sirajuddaulah के नवाब बनने के बाद ब्रिटिशर्स tried for someone else to become Nawab of Bengal, but Sirajuddaulah finally ordered British East India Company that not to not to interfere in Nawab's matter, and they should not do any, they should not, just 1 minute please, what happened, go there, I will just give you chairs after 5 minutes, please go. See, my video is going on, beta, please. Okay, sorry students. Okay, so Sirajuddaulah के सामने कोई और नवाब खड़ा कर रहे थे ब्रिटिशर्स. सो सिराजुद्दौला ने फाइनली ब्रिटिशर्स को ऑर्डर दिया था कि दे शुड नॉट इंटरफेयर इन आवर मैटर एंड दे शुड नॉट फोर्टिफिकेशन, दैट इज़ वो अब और एरियाज पे कब्जा ना करे. मतलब सिराजुद्दौला ब्रिटिशर्स के थिंकिंग के अगेंस्ट ही निकले, वो इतना ज़्यादा ब्रिटिशर्स को फेवर नहीं कर रहे थे. देन और सिराजुद्दौlah even told to Britishers to pay revenue. हालांकि औरंगज़ेब had permitted them not to give revenue and all, but after the death of Aurangzeb, Sirajuddaulah and other Nawabs came to know about the situation is not going to work if we will not take revenue from Britishers. So he asked revenue from Britishers at that time. After negotiation failed, the Nawab marched with 30,000 soldiers to the English factory at Kasim Bazaar, captured the company officials, locked the warehouse, disarmed all Englishmen and blockaded English ships. Then he marched to Calcutta
to establish control over companies fought there. So बंगाल में कसिम बाजार में जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिस था, गोडाउन था, ब्रिटिशर्स थे, उन सबको उन्होंने अपनी कैद में कर लिया, बंद कर लिया सब कुछ, एंड फाइनली वेंट टू कोलकाता के कोलकाता में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन ऑफिस था, उसको भी कैप्चर करने के लिए इन लोगों ने फाइनली जाकर व्हाट वी कैन टेल नवाब सिराजुद्दौला खान ने कब्जा करने की कोशिश की. On hearing the news of the fall of Kolkata, company official in Madras sent forces under the command of Robert Clive. Reinforced by naval fleet, prolonged negotiation with the Nawab followed. Finally, in 1757, Robert Clive led the company's army against Sirajuddaulah at Plassey. One of the main reasons for the defeat of Nawab was that the force led by Mir Jafar, one of Sirajuddaullah's commander, never fought the battle. Clive had managed to secure his support by promising to make him Nawab after crushing Sirajuddaulah. तो सिराजुद्दौला ने कलकत्ता जाकर अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिस को कैप्चर करने का कोशिश किया. उसके बाद जब ये न्यूज़ मद्रास के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिस तक पहुंची, उन्होंने एक ग्रुप ऑफ ब्रिटिश आर्मी विद लीडर रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल में भेजा. सिराजुद्दौला के साथ मीटिंग्स वगैरह की, उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन सिराजुद्दौला वॉज वेरी फर्म विद हिज डिसीजन दैट ब्रिटिशर्स शुड पे टैक्सेस. तो फाइनली रॉबर्ट क्लाइव ने ये ऑर्डर दिया और बैटल फाइट हुआ सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच. बट जब बैटल फाइट हुआ उस वक्त भी व्हाट हैपन, मेन सिराजुद्दौला हार गया, दैट इज नवाब ऑफ बंगाल गॉट डिफीटेड इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिशर्स. बट द मेन रीज़न के नवाब हारा, एक्चुअली हारते नहीं, यू नो पावरफुल जब होते हैं ना वो इजीली नहीं हारते अनटिल एंड अनलेस उसके बीच के ही कोई बंदे ऑपोजिट टीम के साथ मिल जाए. ओके, तो वही हुआ. सिराजुद्दौला के एक कमांडर थे मीर जफर, वो अपने ग्रुप के साथ ब्रिटिशर्स का सामना करने के लिए नहीं गए. क्यों? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने उनको एक लालच दिया था कि अगर सिराजुद्दौला हट जाता है तो हम बंगाल का नवाब मीर जफर को बनाएंगे. तो मीर जफर को तो नवाब बनने का लालच था, तो मीर जफर ने ये एग्री किया एंड फाइनली ही नॉट गेव एनी सपोर्ट टू सिराजुद्दौला, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला गॉट डिफीटेड. The Battle of Plassey became famous because it was the first major victory the company won in India. Battle of Plassey बहुत ही फेमस हो गया था, 1757 में हुआ था. ओके, क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा बैटल था जो ब्रिटिशर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी अचीवमेंट थी और पहली इतनी बड़ी अचीवमेंट थी. After the defeat of Plassey, Sirajuddaulah was assassinated and Mir Jafar made the Nawab. The company was still unwilling to take over the responsibility of administrative. Its prime objective was the expansion of trade. If this could be done without conquest through the help of local rulers who were willing to grant privileges, then territories need not be taken over directly. So what happened? That is सिराजुद्दौला हार गए बैटल में और फिर मीर जफर को ब्रिटिशर्स के प्रॉमिस के अकॉर्डिंग वहाँ पे नवाब बना दिया गया. बट द पॉइंट इज ब्रिटिशर्स खुद विलिंग नहीं थे. ब्रिटिशर्स की कोई इच्छा नहीं थी कि नवाब को हटा दें और हम रूल करें. क्यों ऐसा नहीं था? दैट इज़ बिकॉज ब्रिटिशर्स को अपना बिजनेस एक्सपेंड करना था और बिजनेस एक्सपेंड करना और फिर एक एरिया पे रूल करना, तो ये डबल काम के ऊपर फोकस करने से अच्छा है बिजनेस एक्सपेंड करने में फोकस करें.
So Britishers were focusing on their business and they finally made Mir Jafar as Nawab. Okay, soon the company discovered that this was rather difficult, for even the puppet Nawabs were not always as helpful as the company wanted them to be. After all, that they had to maintain the basic appearance of dignity and sovereignty if they wanted respect from their subject. अब प्रॉब्लम ये था, ब्रिटिशर्स को ऐसा लगा कि अगर मीर जफर को नवाब बना दिया जाएगा तो वो हमारा पपेट बन के ही रहेगा, और पपेट बन के रहेगा मतलब हम जैसा बोलेंगे वैसा वो करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मीर जफर भी नवाब है तो उसको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करने में कहीं ना कहीं वो ब्रिटिशर्स के विशेस पर अच्छा नहीं था। ओके, तो what could the company do? When Mir Jafar protested, the company deposed him and installed Mir Kazim in his place. When Mir Kazim complained, he in turn was defeated in battle fought in Buxar, 1764, driven out of Bengal, and Mir Jafar was reinstalled. तो सिराजुद्दौला हार चुके थे, उसके बाद मीर जफर को नवाब बना दिया गया। जब मीर जफर ने थोड़ा आर्ग्यू किया ब्रिटिशर्स के साथ, तो ब्रिटिशर्स को लगा दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क एनी मोर नाउ, सो दे अपॉइंटेड मीर काजिम एज नवाब। उन्होंने मीर जफर को भी हटा दिया और मीर काजिम को नवाब बनाया। बट मीर काजिम भी बहुत स्ट्रिक्ट था रूल्स का, वो भी ब्रिटिशर्स को सिस्टमेटिकली स्मूथली काम करने में अड़चन डाल रहा था। तो ब्रिटिशर्स ने मीर कासिम को रिमूव करके मीर जफर को दोबारा से नवाब बना दिया अपने बंगाल का। ओके, तो ये जो मीर जफर और मीर कासिम के टाइम पे जब वो बैटल हुआ था, दैट वाज बैटल ऑफ बक्सर। ये दिस वाज सेकेंड बैटल। First battle was Battle of Plassey with Sirajuddaulah, and then Britishers fought second battle in 1764 along with Mir Jafar and Mir Kazim, and that also for Bengal only. तो बंगाल में फिर से मीर जफर नवाब बन गए थे। ओके, the Nawab had to pay rupees 500,000 every month. That is rupees 5 lakh every month. But company wanted more money to finance its wars and meet the demand of trade and its other expenses. It wanted more territory and more revenue. By the time Mir Jafar died in 1765, the mode of the company was changed. Having failed to work with puppet Nawab, Clive declared, We must indeed become नवाब ourselves. तो मीर जफर को जब दोबारा से नवाब बनाया, तब एक रूल बना दिया गया था कि नवाब्स हैव टू पे टैक्स टू ब्रिटिशर्स। अब नवाब टैक्स पे करेंगे, और वो भी कितने, 5 लाख रुपीज़। उस टाइम के 5 लाख रुपीज़ टू मच, तो वो रुपीज़ पे कर रहे थे। बट ब्रिटिशर्स को उससे भी शांति नहीं थी, उनको और मनी चाहिए था कि उनका बिजनेस और एक्सपेंड हो। ओके, सो यही स्ट्रगल करते करते मीर जफर गॉट एक्सपायर्ड एंड मीर जफर के बाद तो कोई नवाब नहीं था। बट फाइनली मीर जफर के बाद ब्रिटिशर्स ने ये डिक्लेयर किया कि अब हम ही यहाँ के नवाब हैं, अब हम किसी और को नवाब नहीं बनाएंगे। फाइनली इन 1765 the Mughal emperor appointed the company as the Diwan of the provinces of Bengal. The Diwani allowed the company to use the vast revenue resources of Bengal. That is, Britishers को दीवानी राइट मिल गई। दीवानी that is collecting दीवानी that is collecting taxes from people. ओके, तो टैक्स कलेक्ट करने का पहले नवाब्स के पास जो राइट था, अब वो ब्रिटिशर्स को मिल चुका था। दिस सॉल्व द मेजर प्रॉब्लम दैट कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड। फ्रॉम द अर्ली 18th century, its trade with India had expanded.
but it had to buy most of the goods in India with gold and silver imported from Britain. This was because at this time gold from Britain slowed after the Battle of Plassey. अब बैटल ऑफ प्लाजी हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, धीरे धीरे ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट भी मिल गए, मुगल एम्परर कम्प्लीटली ख़त्म हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेस भी अच्छा खासा बढ़ चुका था ब्रिटिशर्स का इंडिया के साथ. बट समवेयर ब्रिटिशर्स वर लैकिंग बिहाइंड बिकॉज ब्रिटिशर्स वर डूइंग पेमेंट टू इंडियंस बाय गोल्ड एंड सिल्वर. एंड बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो ब्रिटेन से गोल्ड एंड सिल्वर लाया जाता था वो कम हो गया था, उसकी जो सप्लाई थी दैट वाज रिड्यूस्ड. द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लो आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी and entirely stopped after the assumptions of Diwani expenses. Diwani. Now, revenues from India could finance company expenses. अब इंडिया में से रेवेन्यू कलेक्ट करके वो अपनी कंपनी को चलाना चाहते थे. दैट इज़ अब फॉरेन ब्रिटेन से कुछ नहीं आएगा, इंडिया से ही खर्चा करना है और इंडिया से ही इनकम करनी है. ओके, देन these revenues could be used to purchase cotton and silk textile in India, maintain company troops and meet the cost of building the company fort and offices at Calcutta. So ये जो टैक्सेस अब इंडिया के लोगों से कलेक्ट किए जाते थे वो ब्रिटिशर्स की डेवलपमेंट के लिए यूज़ किए जाते थे. फिर भले वो कंपनी का बिजनेस इंक्रीज करने के लिए हो या ब्रिटिशर्स को इनकम देने के लिए हो या फिर ब्रिटिशर्स कंपनीज का बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए, whatever, but all the revenues collected by from Indian peoples were used by Britishers to develop their own group of people in India. That was regarding Battle of Plassey. Now the next is company official becomes nabobs. Now what it is, we will continue in our next video. Till then, go on studying please. Thank you.